The second topic of application of derivative is increasing and decreasing function. To understand increasing and decreasing function, we consider a function fx is equal to x square, and if we will plot the graph of this function, in previous classes we plot this graph. So what we get a parabola, because this is y is equal to x square, equation of parabola. So we will get this type of graph when we plot the graph of this function. It is what? Parabola. Now what we see here, as the value of x increases, the value of function increases on the right hand side of the origin, and on the left hand side of the origin, as the value of x increases, the value of function decreases. This is x axis and y axis. We take value of x on the x axis and value of function on the y axis. Okay, so this is what fx, and here is what x. So as x increases, the value of function increases. Here, as the x increases, value of function decreases. So if the value of function is increases with the value of x, then that type of functions are known as increasing. Means this function is increasing on the left hand side of the on the right hand side of the origin, and it is decreasing on the left hand side of the origin. Yes. In definition, if we take a small interval I, which is in the domain of function fx, and x1 is less than x2, means the value of x is increases from x1 to x2, and this implies value of function also increases. Fx1 is less than fx2. Okay, means value of x increases and the value of function is also increases. So that type of functions are known as increasing function. And if value of function decreases when the value of x or value of पैरामीटर इंक्रीजेस सॉरी, x की वैल्यू इंक्रीज होगी और फंक्शन की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन. देखिए x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, इट मे बी लेस देन और इक्वल टू, इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. अगर यहाँ पे हमने ये साइन लगा दिया, केवल लेस देन इक्वल टू हो गया, तो ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा तो इट इज ओनली इंक्रीजिंग. हियर ऑल्सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अगर केवल ग्रेटर देन साइन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन साइन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ द थर्ड थिंग, इफ x1 is less than x2 means x की वैल्यू इंक्रीज हो रही एंड दिस फंक्शन रिमेन सेम, fx is equal to c, मीन्स ये फंक्शन जो है कांस्टेंट है, मीन्स x1 is equal to fx2, इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, is equal to c. तो that type of function is known as constant function, means neither increasing nor decreasing, constant function. Here is a question, show that the function fx is equal to 7x minus 3 is increasing on R. So we consider the two numbers x1 and x2, x1 and x2 belongs to R.
if x1 is less than x2, on multiplying by 7 both sides, so we'll get 7x1 is less than 7x2. On subtracting 3 from both sides, you will get 7x1 minus 3 and 7x2 minus 3. And with the help of definition is what? Fx is equal to 7x minus 3. So 7x1 minus 3 will be what? Fx1, and 7x2 minus 3 will be what? Fx2. So in this way, what we conclude that value of x increases, so value of function is also increases. So what we conclude here, so this implies f is what? Strictly increasing function. Now we consider one of the theorem. Let f be the continuous function on this closed interval a to b, and the differentiable on the open interval this. Then this f is increasing. F is increasing. When this f is increasing in this interval ab, when if f dash x is greater than 0 for all x belongs to ab. इस इंटरवल में जितने भी x होंगे, इस इंटरवल में जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, उन सब के लिए अगर f डैश x जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दैट फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, मीन्स उसका डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 है. अभी तक हमने जो है जनरल कंसेप्ट देखा था इंक्रीजिंग फंक्शन का. अब इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज कैसे करें. तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा. इफ f is decreasing, और डिक्रीजिंग कब होगा? इन दिस इंटरवल दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन f डैश x इज लेस देन 0. अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab, अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा. और f इज कांस्टेंट इन ab. इस इंटरवल में f कांस्टेंट होगा. कब होगा? जब f डैश x इज इक्वल टू 0. f डैश x जो है वो क्या हो जाएगा? 0. डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा. ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज यूज फॉर ऑल. इस सिंबल का मीनिंग होता है फॉर ऑल. अब देखिए हमने जो एग्जांपल 7 किया था, एग्जाम्पल 7 अभी जस्ट हमने किया था fx इज इक्वल टू 7x माइनस 3. वी हैव टू चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r और नॉट. सो फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, यू विल गेट 7, एंड दिस 7 इज नॉट पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x. ओके, सो व्हाट वी गेट? द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज positive, and if it is positive, then this function will be what? Increasing function. So in this chapter we have to use derivative to find out increasing or decreasing function. Example number 8, we have to show that the given function fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x, where x belongs to R, means its domain is real number, is increasing on R. So we will use derivative to show whether it is increasing or not. So first of all, our function is fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x. On differentiating with respect to x, what we get? F dash x is equal to 3x square minus 3 to just 6x plus 4. Means f dash x
is equal to 3x square minus 6x plus 3 plus 1. 3 plus 1 इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म्स में से हम 3 कॉमन हम ले सकते हैं. So we take 3 common, so it is x square minus 2x plus 1 plus 1, and this is the whole square of x minus 1. So we may write it as a x minus 1 whole square plus 1. So f dash x is equal to 3 into x minus 1 whole square plus 1. Now x minus 1 whole square of a number is always positive. So this will be, and plus 1, हम पॉजिटिव में प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस पॉजिटिव मिलेगा. ओके, सो फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. ओके, तो सारे x which are belongs to R, okay, this value means f dash x is what, greater than 0, means what we conclude, f is increasing on R. Example number 9. Here function is fx is equal to cos x. We have to prove that it is decreasing in this interval 0 to pi, increasing in the interval pi to 2 pi, and neither increasing nor decreasing in the interval 0 to 2 pi. So first of all we will find out the derivative of this function. Fx is equal to cos x. So derivative of this is f dash x is equal to minus sin x. Now the first we take the interval. Now since for what each x belongs to 0 to pi, 0 to pi means first और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव. So sin x is what, always greater than 0. Then minus sin x will be what, less than 0. इनइक्वलिटीज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटीज चेंज हो जाएगी. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स क्या था, एफ डेस एक्स. इसका मीनिंग हो गया एफ डेस एक्स इज लेस देन 0, और आप एफ डेस एक्स इज लेस देन 0, एफ डेस एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन. तो दिस इंप्लाई एफ इज डिक्रीजिंग इन 0 to pi. Now second B. Second interval is pi to 2 pi, means third and fourth quadrant. So we know that since for each x belongs to pi and 2 pi, sin x is less than 0. थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. दिस इंप्लाई माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस साइन एक्स क्या था, एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 होगा. तो दिस इंप्लाई व्हाट, एफ इज इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई. नाउ सी इज व्हाट, 0 to pi. अब 0 to pi इंटरवल कंटेंट दिस इंटरवल एज वेल एज दिस इंटरवल, ये दोनों इंटरवल इस इंटरवल में होंगे. तो देखिए इस इंटरवल में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है. मीन्स थ्रू आउट दिस इंटरवल इट इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग. सो वी कैन से, और वी कैन राइट हियर द conclusion that clearly by A and B means it is decreasing in half of the interval and increasing in half of the interval. So what we conclude is AF is neither decreasing nor increasing in 0 to 2 pi. Example number 10, we have to find out intervals. We have to find out intervals. अभी तक क्वेश्चन थे उनमें हमने इंटरवल गिवन था. Here we have to find out the intervals.
where this function is increasing and decreasing. See how we will find out the intervals. Before going to find out the intervals, we consider some graph of a function. Suppose graph of a function is like this. So see, from here to here, this function is increasing. From here to here, it is. यहां से यहां तक ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां से यहां तक ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है. ये हम पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस. लेकिन यहाँ पे जहां पे ये फंक्शन डिक्रीज होते हुए इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जो फंक्शन है कांस्टेंट बन जाएगा, मींस नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो ये वाला जो पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, इन पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को अलग कर लेंगे. बस ये चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं. देखिए, f(x) is equal to x square minus 4x plus 6 and then f dash x will be what, 2x minus 4. अब ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो हम वो वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं. इफ f dash x is equal to 0 then 2x minus 4 is equal to 0. This implies 2x is equal to 4 and x is equal to 4 by 2. That is x is equal to 2. Means x is equal to 2 पे इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 है. मीन्स यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. अब फंक्शन में हमें गिवन नहीं है डोमेन क्या है, तो वी विल कंसिडर दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर. तो रियल नंबर पे ये जो 2 है, ये पॉइंट यहाँ होगा. मीन्स इसका जो डोमेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट. ये माइनस इनफाइनाइट टू 2 और 2 टू इनफाइनाइट. ओके, तो वी हैव टू पार्ट ऑफ दिस इंटरवल. इसको हम थोड़ा सा और ऐसा लिख दें, 2 कॉमन ले लें, x माइनस 2. तो देखिए यहां पे हमारे पास इंटरवल्स माइनस इनफाइनाइट टू 2 एंड 2 टू इनफाइनाइट. ओके, साइन ऑफ f डैश x एंड नेचर ऑफ फंक्शन. So what will be the sign of f dash x? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग. कैसे पता करेंगे? तो इस इंटरवल में हम माइनस इनफाइनाइट मान लिया 1 ले लेते हैं. 1 इज, तो 1 अगर हम यहाँ लेते हैं तो देखिए 1 अगर यहाँ पुट करता हूं मैं, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 2. ठीक है. फिर ध्यान से देखिए, इस इंटरवल में से एक पॉइंट लेना, कोई भी पॉइंट. मैंने 1 ले लिया तो 1 माइनस 2. मैं 0 भी ले सकता हूँ, 0 भी इस इंटरवल में है. अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो 0 माइनस 2 इज माइनस 2. माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4. मीन्स ये क्या होगा, नेगेटिव होगा. मीन्स यहाँ पे जो है ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा. लेकिन 2 टू इनफाइनाइट, इसमें एक पॉइंट ले लिया, मान लिया 3 ले लिया, तो 3 हम यहाँ लेंगे तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव. तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0. मीन्स इस इंटरवल में f डैश x जो है वो लेस देन 0 है. मीन्स इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. ओके, तो ये इंक्रीजिंग इस वाले इंटरवल में होगा और डिक्रीजिंग इस वाले इंटरवल में होगा. सो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो